کون ہمارے ساتھ آج موجود ہے, کہاں سے, سنوائے گا. السلام علیکم آغا صاحب, میرا نام عمران ہے, میں ادھر پنڈی میں رہتا ہوں. تو میں شادی شدہ ہوں, میں ایک شیعہ ہوں, میری جو وائف ہے وہ سنی ہے. تو ہم افطار کے ٹائم وہ اپنے ٹائم پہ کرتی ہیں, میں اپنے ٹائم پہ کرتا ہوں. تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی حضرت فرمائیے گا. جی جناب, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. شریعت میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے. ان کو اپنے ٹائم پہ کھولنے دیں اور آپ اپنے ٹائم پہ افطار کریں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. جی جی, اور ہمارے ہاں میرے گھر میں بھی کوئی ایسا ہی سسٹم ہے, تو ہم نے تو کیا ہوا ہے کہ بس ساتھ کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی ان کے وقت کے مطابق میں کھول لیتا ہوں, کبھی 5-5 منٹ کی قربانی دے کے درمیان میں دونوں آگے کھول لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں سکون کو آپ بس سکون کو رکھیں. اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم, میں فضا بات کر رہی ہوں کراچی سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان میں اگر لپسٹک لگاتے ہیں تو اس سے یہ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ ابویسلی ہماری لپس کی موومنٹ ہوتی ہے, ہم بول رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس کا بھی تو ٹیسٹ ہوتا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا. تھینک یو. یہ سوال پہلے بھی کہیں آیا تھا, اور اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کام مغرب کے بعد کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہے, لیکن دن کو بھی کبھی ضرورت اس کی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح سے ہو کہ وہ اس کا ہم حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس نہ کریں, تاکہ روزہ ہمارا مکروہ نہ ہو. جس میں کیمیکلز والی آ رہی ہیں وہ یوز کر سکتے, ایک فلیورڈ ہوتی ہیں, اس کے اندر جو فروٹس یوز ہوتے ہیں, فروٹس کے علاوہ جو کیمیکلز آتی ہیں, کوئی اس کا نام وائف سے تو نیکڈ لپسٹک کہتے ہیں, کوئی اس طرح کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اسی سے متعلق آگے بھی پڑھیں گے. مفتی صاحب, یہ جو نیل پالش ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ وضو نہیں ہوتا, اس کے بارے میں بھی؟ جی ٹھیک ہے, دیکھیے وضو میں یہ میں نے آج صبح درس میں بھی یہ بات کی کہ وضو میں پانی پہنچانا جو ہے نا بشر جلد سکن تک ضروری ہے. تو ہر وہ چیز, چاہے وہ نیل پالش ہے, چاہے آٹا ہے, چاہے رنگ روغن کا کوئی وہ ہے, کوئی بھی چیز ہے جو جلد تک پہنچنے میں مانع ہے, تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. الا یہ کہ اگر ایک شخص زخمی ہے اور یہاں پر اس نے پٹیاں باندھی ہوئی ہے, تو دیکھیے پھر شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھ دی, وہ اس کے اوپر مسح بھی کر لے. جی علامہ صاحب, آپ اس پہ کوئی؟ جی, بنیادی تو یہ چیز ہے کہ جلد تک پانی پہنچانا ٹھیک ہے چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس میں جتنی چیزیں رکاوٹ ہیں وہ سب ممنوع ہے, وہ سب ممنوع ہے. لیکن اسامہ صاحب, آج کل حلال نیل پالش کا بھی ایک کانسیپٹ آیا ہے, وہ آئے ہیں ابزاربنس, وہ میں چاہوں گی رہنمائی کریں. اچھا, اس میں ابزاربنس ہے, کلیم ہے, لیکن اس میں ڈاؤٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے میں عمومی طور پہ نا پہلے وائف سے اس کی تفصیل لے لیتا ہوں کہ یار کیا ہے. تو وہ بتایا تھا, اس میں کہا کہ اس کی ابزاربمنٹ کے بعد بھی نا جو وہ ہے وہ اس کے اندر ایبزارب نہیں ہو رہا, اس کے اوپر سے پانی گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پانی جو ایبزارب کرنے والے ہیں وہ چیزیں کلیم تو کر کے بھیجتے ہیں, لیکن بہتر ہے, خیر ہے, جیسے مفتی صاحب کی میں اس بات سے کہوں گا کہ صبر کر لیں, مغرب کے بعد کر لیں ایسی چیزوں کو, تو زیادہ بہتر ہے. بہت خوب, بہت خوب. اگلا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم مولوی صاحب, میں عائشہ بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا جن لوگوں کے ذمے رمضان کی قضا روزے ہوتے ہوں وہ مستحب روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ علماء اس میں یہ فرماتے ہیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا بھی تھا. آپ نے قضا کی نیت کی, آپ نے پیر کو رکھا ہے, تو آپ قضا کی ہی نیت کریں گے, لیکن آپ کو اس پیر کے دن کا ثواب بھی, اجر و ثواب بھی ملے گا. تو ان ایام کے ساتھ اس طرح رکھ لینا بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ نیت جو کریں گے اپنے قضا روزے کی کریں گے. ٹھیک ہے, اگلا سوال سنتے ہیں. اخلاق حسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ افطار سے پہلے مجھے نیند آ جاتی ہے, روزہ افطار ہونے کے بعد اٹھتا ہوں, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. جی علامہ صاحب. دیکھیں, روزہ افطار کرنا, افطار سے مراد جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز رائج ہے کہ افطار کرنے کے لیے بہت ساری ڈشز کا ہونا, یا فوڈس کا ہونا, یا مشروبات کا ہونا, یہ افطار کے لیے ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں کھانے پینے کی ضروری نہیں ہے. اصل آپ جب بھی افطار کا جو ٹائم ہے, اگر وہ ٹائم ہو چکا ہے تو خود بخود روزہ افطار ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو افطار کرنے کے لیے بہتر چیز میں نے کیا کھانی ہے, یا روایات میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ کیا کھایا جائے, یا کس چیز سے روزے کو افطار کیا جائے. افطار کا مطلب یہی یعنی کہ جو آپ
पाबंदी में थे उसको तोड़ना है, उससे आपने बाहर आना है। तो ज़ाहिर सी बात है उससे बाहर आने के लिए, उससे इफ्तार करने के लिए या तो कोई चीज़ पीनी है या तो कोई चीज़ खानी है। तो रवायात में जो अहादीस में आता है वो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कोशिश करें कि रोज़े को इफ्तार करें खजूर के साथ। ठीक है, लेकिन उनका सवाल ये है कि मैं इफ्तार से पहले सो गया और अब इफ्तार के बाद उठ रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं, मसला नहीं। मुफ्ती साहब इसी तरीके जी से ठीक है, अफ्तार से पहले तो ये है कि अफ्तार के वक्त में सोना नहीं चाहिए। देखिए आपके सवाल का मैं कोई रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्योंकि ये वक्त दुआ का है बिल्कुल, और इस पर हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो गई है। बाकी ये है कि अगर आप सो गए गलती से और 10, 15, 20 मिनट के बाद भी आप उठे तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, रोज़ा आपका होगा। अलबत्ता ये है कि अफ्तार में ताख़ीर हो गई, बस इतनी सी बात। ठीक है जी, अगला सवाल सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं निम्रा बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं बचपन में जब बालिग हुई थी तो शुरू के 2-3 साल के जो रोज़े छूटते हैं उसकी वजह से वो मैंने नहीं रखे हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या हुक्म है अब कि मैं वो रोज़े अभी रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती? देखिए रोज़ा बदनी इबादत है और मिसाल के तौर पर 3 साल के 4 साल के रोज़े आपसे छूटे हैं तो गोया के 60 दिन ऐसे ना, जो यानी जितने दिन बनते हैं वो, तो उन दिनों का आप एक हिसाब लगा लें और उनको आप लगातार भी रख सकती है और एक दिन छोड़कर एक दिन भी रख सकती है, जैसे भी तरतीब मुमकिन हो। लेकिन क़ज़ा रोज़ों में रखने ज़रूर हैं, अच्छा रखने, ये जवान खातून और जवान मर्द ने। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ऐसा शख्स है जो शेख फ़ानी है, फ़ानी का मतलब ये है कि अब वो 80 साल का है, 90 साल के नीचे ही जाना है और अब वो ताकत नहीं रख सकता, तो वो फिदिया दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ जो समझाना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि चूँकि अभी माह मुबारक रमज़ान चल रहा है ना, तो इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो कि अभी जो है रमज़ान के वाजिब रोज़ों को जो इस वक्त वाजिब हैं उनको छोड़ के मैं कज़ा की नियत नहीं, वो नहीं ये नहीं हो पुराने के जो बालिग हुए उनसे छूट गए या हमसे नादानी, साल के 11 महीनों में, साल के 11 महीने उन रोज़ों को माह मुबारक के रमज़ान के बाद रखें। ठीक है, यानी यहाँ इस मौजूदा रमज़ान में वो ऐड नहीं कर सकते। डेफिनेटली ठीक है, बहुत खूब। जी अगला सवाल सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़ान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम मुस्तहब रोज़ा तोड़ सकते हैं? वाजिब रोज़ा नहीं है, मुस्तहब रोज़ा है, तो क्या हम किसी वजह से तोड़ सकते हैं? आसानी से, अगर कोई खाना अच्छा लग गया है, दावत अच्छी लग गई है, ठीक है, बेगम ने फरमाइश कर दी है कि मैंने बहुत अच्छी आपके लिए चीज़ बनाई है, ठीक है, किसी दोस्त के यहाँ गए, उसने दावत का अच्छा इस्तेमाल कर लिया तो इस्तेमाल, हाँ, लेकिन उसमें एक एहतियात रखना, अगर अफ्तार का वक्त करीब है तो फिर ना तोड़ें। और एक इसमें हम इस बात के भी कायल हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी में कि लज़िम नफ़ल बिश्शुरू, यानी देखिए नफल नमाज आपके ऊपर मोहतरम वाजिब नहीं है, लेकिन जब आपने वो नमाज शुरू कर दी और दरमियान में आप उसको वो बाहर निकल आए तो उसको मुकम्मल करेंगे। ऐसे ही ये रोज़ा आप पर वाजिब नहीं था, आपने खुद ही अपने ऊपर रखा नियत करके। तो आज मेहमान घर में आया, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन, तो आप मेहमान, लेकिन आगे फिर इस क़ज़ा लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बेहतरीन देखें हुस्न इस्लाम भी है, क्या लतीफ़ जुमला है और लतीफ़ एक हकीकत भी है मुस्तहब रोज़ों के हवाले से। ये एक मसला है कि कहा गया है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि आप 10 बजे सो गए और कोई चीज़ खाई पीनी है, आप सो गए और 4-5 बजे उठते हैं, ठीक है, मगरिब का टाइम करीब है, उस टाइम पे भी आप अगर नियत कर लें मुस्तहब रोज़े की तो आपका रोज़ा भी हो जाएगा, आपको सवाब भी मिल जाएगा, और जो 1-2 घंटा बजे हैं उसमें आप जो ना, इसमें हम फ़िक़्ह हनफ़ी में इसके ये कायल हैं। मौलाना ने देखिए हमारे यहाँ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते आका, और घर में आकर खाने के बारे में पूछते, अल्लाहु अकबर, और आपको कहा जाता कि कुछ भी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं रोज़े से हूँ। तो दिन के 12 बजे से पहले आप नियत करेंगे फ़िक़्ह हनफ़िया के यहाँ जी, फ़िक़्ह हनफ़िया। और इसी तरीके से कोई आदमी बीमार है, मसलन वो कहता है मैं रोज़ा रखूँ कि न रखूं, तो वो रोज़ा रखूं कि न रखूं ढवा डोल है अभी, तो वो भी दिन ज़वाल से पहले वो भी नीयत का तयन करेगा। और इसी तरीके से कोई आदमी मुसाफिर है, इसमें कई लोग आते हैं और वो हालत सफ़र में वो कहता है
सफ़र तो बहुत शानदार है तो रोज़े को तोड़ देता हूँ, सफ़र तो बहुत, तो वो भी उसके पास दोनों ऑप्शन है ना, रोज़ा रखना भी है और नहीं रखना भी, तो वो भी दिन के 12 बजे से पहले तयन करेगा। हमारे मसलक के फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक जो है वो ज़ोहर शरई, ज़वाल शरई जिसको कहा जाता है, उससे पहले वाजिब रोज़े की नियत करनी है, ठीक है, लेकिन मुस्तहब रोज़े की मगरिबैन तक इजाज़त है। जी अगला सवाल है तो सुनवाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कुर्बान बोल रहा हूँ पत्तों की से, और मेरा उलमा से ये सवाल है कि जो नमाज और रोज़े के लिए नियत की जाती है, ये अरबी में करना ज़रूरी है या बोल के अल्फाज से नियत करना ज़रूरी है, या दिल में या जहन में बंदा जब नियत कर लेता है तो वही नियत जो है वो काफ़ी होती है? देखिए नियत का एतबार जो है वो आपके अपने आप के और माबैन अल्लाह जो है वो है, ठीक है, लेकिन इसमें यह है ज़ुबान से कर लेना अफजल है, ठीक है, अरबी में कर लेना बेहतर इसलिए है कि अल्लाह ने कहा कुरान के बारे में कहा कि बिलिसान अरबी मुबीन, तो इसका अरबी ज़ुबान को जो है अपनी फजीलत हासिल है, और लेकिन अगर दिल में भी कर ली, माबैन अल्लाह कर ले, तो वो भी नियत कबूल हो जाती है। कुरान हदीस से नीयत के अल्फाज रोज़े के लिए साबित नहीं है, कुरान हदीस से साबित नहीं, कहीं हवाला नहीं है। देखिए आका की हर चीज़ महफूज है, लेकिन ये है कि अफ्तारी में जो हम दुआएं पढ़ते हैं वो तो साबित है। तो जैसे शेख साहिब ने फरमाया बस ठीक है, दिल से इरादा कर ले, पतूकी वाली ज़ुबान में भी। इमाम ज़फ़र का, हमारे अहनाफ के बड़े उलमा, उनका ये है कि जब रमज़ान, जैसे रमज़ान के वाले से ये है, मैं तशरीह से कि वो कहते हैं कि जब रमज़ान का महीना आ जाता है तो ये एक जैसे कहते हैं ना अंडरस्टूड सा एलिमेंट है कि इस पे बंदे ने रोज़े ही रखने हैं, तो अगर उसमें नियत ना भी करे तो आप रोज़े की जब से रमज़ान शुरू है नियत करके बस किबला ने थोड़ा इशारा किया इस बात की जानिब जो बयान करने चाह रहा हूँ। पहली बात तो नियत में अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप कहें कि मैं रोज़ा रखता हूँ रमज़ान मुबारक का, यानी आज क्या 13वां रोज़ा है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप चाँद देखा रमज़ानुल मुबारक का, आप पूरे महीने की नियत कर सकते हैं। हाँ वही हमने पहले भी इस पर बात हुई है, बिल्कुल की थी। जी अगला सवाल सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शराफत बात कर रहा हूँ भावलपुर से। मेरा अलामा से ये सवाल है कि सफ़र में बंदा हो और कपड़े नापाक हो जाए, पता ना चले कि कहाँ से नापाक हैं, तो क्या उस सिचुएशन में नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी? जी देखिए, नमाज के 13 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ जो है वो वसियाबा का फ़तहिर है, वसियाबा का फ़तहिर, कि आपने अपने कपड़ों को क्या रखना है, साफ़ रखना है। तो सफ़र में कपड़े अगर नापाक हो गए, अगर मुमकिन है उनको आप वो कर सकते हैं सफाई सुथराई, तो ठीक है, नहीं तो जो नमाजें आपने उन हालात में पढ़ी है वो आप दोबारा दोहराएंगे। ठीक हो गया जी।